अच्छा बेटा, आज की क्लास में वी आर गोइंग टू सॉल्व फेब मार्च 2023 पेपर ऑफ 0580 IGCSE 0580 2022 पेपर 22 हम सॉल्व करने जा रहे हैं. दिस पेपर इज ऑफ एक्सटेंडेड वन एंड द टाइम फॉर दिस पेपर इज 1 hour 30 minutes. This is 0580 paper 2, so calculators are allowed in this paper. Again, this is 0580 IGCSE paper, so calculators are allowed, but we have to show the proper working wherever it is required. फिर यहाँ पर टोटल मार्क्स 70 मार्क्स है, 70 मार्क्स का ये पेपर है. लेट्स स्टार्ट दिस पेपर. इन क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर दे सेइंग? These are few numbers: 12, 15, 27, 29, 91, 93. From the list of the numbers, write down a cube number. So out of these number, which one is a cube number? So 27 over here is a cube number. It is a cube of 3. 3 cube is 27. So I'm going to write 27 here. A prime number, 12 is not a prime number. 12 has more than 2 factors. Prime number वो होता है जिसकी सिर्फ, which has only 2 factors, itself and the 1. So 12 has more than 2 factors, 15 has more than 2 factors, 29, sir, 29 has only 2 factors, that is 1 and 29 itself. So 29 is going to be your prime number. All right. Next, what they are saying in question number 2, there are 2 matrices, column matrix, like you have a translation matrix भी होता है आपके पास. इसको हम column vector भी कहते हैं, translation matrix भी कहते हैं, इसको हम column matrix भी कहते हैं. तो देखो बेटा, आपके पास these are 2 matrices, both have 2 rows, 1 column. So they are saying to subtract them. So we're going to write the V matrix first. Then Y matrix. We are going to subtract them. How we are going to subtract them? -1, -2. So I'm going to have -3 here. 3 -5, which is -2 here. So -3 -2 is going to be your final answer of this question. They're asking you, what is 2 times V? So 2 times V is 2 multiplied by both of these elements over here. 2 in दोनों elements से मिला होगा. 2 multiplied by -1 is going to be -2. 2 3s are 6. So final answer is going to be -2 and 6 over here. This is the answer of 2V here. Question number 2 is done. Question number 3, it says on the Venn diagram, shade the region A intersection B. We know this, A intersection B means a common portion of A and B. So which one is the common portion of both A and B? Sir, the common portion of both A and B is this one. Right? So you're going to shade this region. You'll get 1 mark for this. Okay. In question number 4, they are saying there are numbers and this is a sequence over here. ये sequence है यहाँ पर. और इस sequence में बेटा वो आप पूछ रहे हैं, write down the next number in this sequence. As you can see, कि 23 में if I subtract 7, subtract 6 over here, I'll get 17. 17 minus 6 is 11. 11 minus 6 is 5. So what is 5 minus 6? 5 minus 6 is -1. So the next number over here is going to be -1. ठीक है ना? Write down the nth term of the sequence. This one is a linear sequence. Linear sequence में nth term का formula is a plus n minus 1d. This one is a linear sequence, common difference sequence, arithmetic sequence, all are same thing. तो इसमें देखो जो first term होती है, that is called the a value. A value over here is 23. N remains same because we are finding the nth term. D, what is D? D is a common difference over here. This difference, 17 minus 23, 11 minus 17, this difference over here is the D value, which is -6 over here. Now I'm going to simplify it. It will become -6 plus -6. So 23 minus 6n plus 6. You will get the answer -6n
23 plus 6. What is 23 plus 6? Sir, 23 plus 6 is going to be 29. So minus 6x plus 29, 6n plus 29 या 29 minus 6n, both are same thing. आपके पास इस सीक्वेंस की n टर्म ये निकल कर आ रही है, ठीक है ना? Now in question number 5, what does it says? It says factorize. फैक्टराइज का मतलब होता है किसी भी चीज को, किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें आप, ठीक है ना? सो द फर्स्ट रूल फॉर फैक्टराइजेशन इज टेकिंग कॉमन. सो व्हाट आई डिड कि देखो यहां पर मुझे कॉमन दिखाई दिया, दैट इज 2 इज कॉमन एंड g इज कॉमन, एंड व्हाट इज लेफ्ट ओवर देन? 2g मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8g, 2g multiplied by g is 2g square. So 2g into 4 minus g is the factorized form here. We cannot further factorize it, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे. देखो हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया एक्सप्रेशन को, that's why it is called factorization. Now they are explicitly saying कि देखो आप 0580 वाले स्टूडेंट्स, calculators are allowed, but they are saying without using calculator, work out 4 by 7 divided by 8. So what I'm going to do, I'm going to write 4 by 7 as it is. When it says divide by 8, I'm going to multiply it. Divide को multiply में convert करेंगे. This is 8 means 8 by 1. तो जब divide को multiply में convert करते हैं तो very next fraction reciprocal हो जाती है. It becomes 8 by 1 by 8 over here. Now I'm going to simplify it further. 4 1s are 4 2s are 8. It becomes 1 over 14. So 1 over 14, it's my simplified form answer. Question number 6, answer is 1 over 14 here. All right, so in this question, they are asking you to solve. What does solve means? Solve means find out the value of the unknown. और यहां पर unknown क्या है? T है. T is unknown over here. So we need to find out the value of T here. अब देखो बेटा यहां पर सिंस इट इज एन इक्वेशन, तो यहां पर सिंप्लीफिकेशन करके फिर टी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग. देखो पहले 15t प्लस टी करा, राइट हैंड साइड से माइनस टी लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आया, प्लस टी हो गया. 4 एज इट इज रहा, 8 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चले गया, माइनस 8 हो गया. इट बिकम्स 15t प्लस 1t 16t इज इक्वल टू -4. नाउ यू गाइस नो दिस के t को मुझे सब्जेक्ट बनाना है. वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t. -4 by 16 इज गोइंग टू बी द आंसर. सर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें. सो 4 1s are 4 4 the 16 minus 1 by 4 is the value of t. Then again, they have given you the part B over here, 7 part B, and they're asking you, okay, find out the value of the unknown, which is solve. Solve means find out the value of unknown. तो u value निकालनी है यहाँ पर u unknown है. तो देखो मैं सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि ये सिंगल फ्रैक्शन है, so I'm going to multiply this 3 in the denominator. I'm going to multiply this 3 in the denominator with a 2. So it becomes 3 2s are 6. -25 minus 6. 6 is going to be on the left hand side. -2u को right hand side पे लाके positive कर दूंगा. 25 minus 6 is 19 is equals to 2u. And the value of u is going to be 19 divided by 2. ठीक है ना? आप 19 divided by 2 लिख दो, or you can also write 19 divided by 2 is 9.5. You can also write u as 9.5 over here as well. So u value is 9.5 here.
सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी अननोन यू नीड टू मेक श्योर कि आप उसको सब्जेक्ट बनाओ. यहां पर मैंने बेटा यही करा, मैंने यहां पर टी को सब्जेक्ट बनाया, यहां पर यू को सब्जेक्ट बनाया टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ यू एंड टी ओवर हियर. देन इट सेज calculate 0.3 square, give your answer in standard form. तो देखो what does 3 square 0.3 square means. स्क्वायर को अगर मैं एज रहने दूंगा और 0.3 को मैं 3/10 लिख दूं, आई बिलीव किसी को मसला नहीं होगा. 0.3 is 3/10 whole bracket power 2. Now this is the square on both न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पर स्क्वायर है. 3 का स्क्वायर बना 9, 10 स्क्वायर बिकम्स 100. अच्छा अगर मैं लिख दूं 100 को 10, 100 को मैं 10 का स्क्वायर यूं करके लिख दूं, और अगर मैं 10 को 10 का स्क्वायर न्यूमरेटर में लेकर आऊंगा तो बेटा इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी. डिनोमिनेटर में 10 की पावर पॉजिटिव 2 है. जब ये 10 को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, इधर डिवाइड बाय 9 हो रहा है ना, तो जब मल्टीप्लाई बाय 10 करूंगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूंगा तो इट बिकम पावर नेगेटिव. पावर क्या हो जाती है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है किसी नंबर को, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं किसी नंबर को, तो पावर बेटा साइन चेंज हो जाता है. तो देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया 9 इंटू 10⁻⁻². सही है ना. वी नो दिस रूल कि आपके पास कभी भी याद रखें, अगर एक्स की पावर ए लिखा हुआ नहीं यूं, तो ये जगह एक्स की पावर माइनस है, या अगर यूं लिखा हुआ है एक्स की पावर पॉजिटिव है तो जगह 1/x की पावर नेगेटिव है. तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, और अगर यहां पर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर में आकर नेगेटिव हो जाता है. ठीक है ना. दिस इज हाउ इंडाइसिस वर्क. और हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहने से, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है दैट इज 9, इसके आगे डेसिमल है. तो देखो 9 इंटू 10⁻⁻², ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ हुआ ऑलरेडी. देन मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, इट सेज साइमल्टेनियसली सॉल्व करें इस क्वेश्चन को. सॉल्व का मतलब है अगेन वैल्यू मालूम करना अननोन की. देयर आर टू वेरिएबल्स x एंड y. We need to find out these values. Either you can use a substitution method or you can use elimination method. ठीक है ना. मैं एक काम ही कर लेता हूं. Let's just use elimination method today. तो मैं इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं. क्यों मल्टीप्लाई करा रहा हूं? सो दैट आई शुड मेक दिस y कोफिशिएंट इक्वल. y का कोफिशिएंट यहां पर 2 है और यहां पर 1 है. तो मैंने डिनोमिनेटर वाली इक्वेशन को, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया. सो इट बिकम्स 2x plus 2y is equal to 3. Now I'm going to add these two equations. 3x minus 2y is equal to 19. और सेकेंड इक्वेशन को जो मैंने मॉडिफाई कर लिया है, आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस. 2x plus 2y is equal to 3. आई एम गोइंग टू ऐड देम. हाउ आई एम गोइंग टू ऐड देम? देखो अगर मैं -2y plus 2y ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा. ये देगा 5x. अच्छा मैंने एक गलती करी है. दिस बिकम 2 3 is 6. ये भी तो 6 हो जाएगा. 3 थोड़ी रहेगा ये. ठीक है ना. तो अब देखो 19 plus 6 कितना हो जाएगा? 25. x value over here is 5 here. Since you got the x value, now you can put x value in any of the equation, either equation number 1 or equation number 2. मैं equation number 2 में पुट कर रहा हूं. यहां पर बेटा मैं x या 5 पुट करा है, and I got the value of y which is 3 minus 5 and it is -2. थोड़ा जल्दी हो जाता है एलिमिनेशन मेथड. So x value is 5, y value is -2. All right. All right. So in question number 10, it says in the diagram AB and CD are parallel. AB and CD are parallel. देखो एरो भी बना के दिया हुआ है. एरो मींस कि वो पैरेलल होंगे. नहीं भी लिखे वो बात, तो ये मैथमेटिकल नोटेशन है कि दैट यू शुड नो कि ये आपस में पैरेलल हैं अगर एरो बना हुआ है तो. द लाइन CB एंड AD इंटरसेक्ट एट x. AB और CD x पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. AB is 3.0, then DB है. AX is 2.0, this length. BX is 2.7, 2.7, and CD is 7.5 centimeter. Find the length of BC.
कह रहे हैं ये बीसी की लेंथ मालूम करके दिखा दें, दिस होल लेंथ, फाइंड आउट दिस होल लेंथ। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मुझे ये पूरी लेंथ मालूम करनी है तो आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, और ऑब्वियसली जब ट्राइंगल दिखाई देता है तो बच्चे का पहले दिमाग जाता है साइन कोसाइन रूल पे जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाता है, पाइथागोरस थ्योरम पे जाता है। ऑल्दो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ये, लेकिन बेटा कभी भी आप ये देखें दो ट्राइंगल इस तरह बने हुए हैं, एक ट्राइंगल इसका एरिया ज्यादा है, एक ट्राइंगल का एरिया कम है। मैं आपको बताऊं ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इधर सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा, ऑल्दो उसने बोला हुआ नहीं सिमिलरिटी, यहाँ पर कहीं सिमिलरिटी का वर्ड इस्तेमाल नहीं करा हुआ, बट ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। और यहाँ पर सिमिलरिटी के कंसेप्ट से काम होगा, क्योंकि अगर हम साइन रूल कोसाइन रूल कोई भी रूल अप्लाई करते हैं, उसके लिए बेटा कोई लेंथ अगर मुझे मालूम करनी है ना, तो मुझे एंगल पता होना जरूरी है। कोई एंगल तो पता हो, यहाँ पर तो कोई एंगल नहीं पता। सर हम निकाल लेते हैं, बेटा बेशक निकाल लें, लेकिन 3 मार्क के लिए अब एंगल निकालें फिर लेंथ निकालें। आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले अगर एरिया ट्राइंगल का ज्यादा है, एक ट्राइंगल का एरिया कम है, और आप ये देखो लाइंस पैरेलल हैं यहाँ पर, तो आप मुझे बताओ क्या ये आपस में एंगल बराबर नहीं होंगे, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स, क्या ये दोनों क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे? ऑल्टरनेट एंगल जी थ्योरम बनाए आप, सी ये जी यूं बन रहा है इसका, और इसका जी यूं बन रहा है, और बेटा थर्ड एंगल बराबर होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हों और एक ट्राइंगल का एरिया कम हो और एक ट्राइंगल का एरिया ज्यादा हो, तो बेटा याद रखिएगा वो ट्राइंगल सिमिलर है। अगर वो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप ये देखो कि यहां पर ए की कॉरेस्पॉन्डेंसी पे डी वाला वर्टेक्स है, बी के कॉरेस्पॉन्डेंसी पे सी वाला वर्टेक्स है, और एक्स की कॉरेस्पॉन्डेंसी पे एक्स वाला ही वर्टेक्स है। दोनों ट्राइंगल का मैंने आपस में कंपैरिजन कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बता दिए। अब ये देखो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ए बी ओवर डीसी साइड, ए बी ओवर डीसी वाली साइड, ये बराबर होगी बेटा बी एक्स ओवर सी एक्स वाली साइड के। ये बराबर होगी बेटा ए एक्स ओवर डी एक्स वाली साइड के। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है। तो मैंने बहुत डिटेल में ये बात लिख दी है। अब यहां पर देखो हमें चाहिए क्या, हमें बीसी चाहिए, बीसी तो यहां पर कहीं भी नहीं है, पर बीसी मालूम करने के लिए वी कैन फाइंड आउट सी एक्स एंड देन ऐड विद 2.7। तो सी एक्स देखो यहां पर ये लिखा हुआ, मुझे क्या क्या वैल्यूज पता है, देखो यहां पर ए बी पता है विच इज 3, मुझे डी सी पता है विच इज 7.5, मुझे बी एक्स पता है विच इज 2.7, मुझे सी एक्स पता है, नहीं सर आपको सी एक्स नहीं पता, मुझे ए एक्स पता है विच इज 2.02, और मुझे dx पता है, सर आपको dx भी नहीं पता। सो आई एम गोइंग टू यूज दिस रिलेशनशिप ओवर हियर, मैं एक ही इक्वेशन यूज करूंगा, यानी 3/7.5, तो 3 मतलब है सी एक्स, 2.7 मतलब है 7.5, देन सी एक्स is equal to 2.7 multiplied by 7.5 divided by 3, you will get the value of cx. So 2.7 multiplied by 7.5 divided by 3, it is going to be 6.75. So what is BC length? BC length बेटा क्या हो जाएगी? This whole BC length is BX plus CX. BX हो जाएगा 2.7, CX हो जाएगा 6.75, 9.45 is going to be your final answer of 9.45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, दिस इज 9.45 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ BC। नाउ दिस इज वन ऑफ द वेरी बेसिक क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट। आपसे बोला है HCF निकाल के दिखा दें, विच इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट आर दोस 12?
दो नंबर जिनका एचसीएफ निकालना है, 12 एक्स की पावर 12 का और 16 एक्स की पावर 16 का। तो देखो पहले 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। वैसे तो मैं बगैर इसके भी कर सकता हूँ लैडर मेथड के, लेकिन 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1 इंटू एक्स पावर 12। फिर यहां पर बेटा 16 एक्स की पावर 16, मैंने 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा 2। So you can write 16 as 2 power 4 into x power 16। अब ये सब लिख लें ये बात कि एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर with lowest power। So which one is the common factor? Sir 2 is a common factor, और इन दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, इसकी लोएस्ट पावर 2 है। तो एचसीएफ में देखो बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 पावर 2। 3 इज अनकॉमन फैक्टर, एचसीएफ में 3 नहीं आएगा। x इज अ कॉमन फैक्टर, इसकी लोएस्ट पावर क्या है 12 है। So you're gonna have the HCF as 2 का स्क्वायर 4, x power 12 is going to be your HCF here। Now in question number 12, in a regular polygon, the interior angle and the exterior angle are in the ratio of 11:1। Find the number of sides of this regular polygon। देखो बेटा रेगुलर पॉलीगॉन में और इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो दे दिया, और यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर का रेशियो क्या दिया, दैट इज 11:1। अब देखो बेटा यहां पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दिया है, नंबर ऑफ एंगल्स का नहीं, इनकी वैल्यूज का रेशियो दिया है। अब देखो याद रखें, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इनका सम होता है 180 डिग्री से ना। कभी भी आप याद रखिएगा इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इनके इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल के रेशियो का सम कितना है, 12 है यहां पर। तो अगर मैं 180 को, जो कि इन दोनों का सम है, टोटल एंगल है, डिवाइड बाय 12 करता हूं, तो मुझे सिंगल रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 180 डिवाइड बाय 12, इट इज गोइंग टू बी 15। अब यहां पर अगर सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं, यहां पर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल है क्या। तो देखो 15 सिंगल का रेशियो है, तो मैंने एक्सटीरियर के सामने लिख दिया 15, उसका रेशियो 1 था, और 15 इंटू 11 एक्सटीरियर इंटीरियर का लिख दिया 15 इंटू 11, दैट इज 165। बेसिकली इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल की एक्चुअल वैल्यू ये रही, जिनका रेशियो 11:1 है। जिनका रेशियो क्या है, 11:1 है। तो मैंने सिंगल रेशियो की वैल्यू निकाली 180, टोटल सम होता है इनका, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180, उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो मुझे सिंगल रेशियो की वैल्यू पता चल गई, 1 रेशियो की वैल्यू। तो 1 रेशियो की वैल्यू इज 15, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो ही 1 था, तो मैंने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 1 लिख दी, 15 लिख दी। इंटीरियर एंगल का रेशियो 11 था, तो 15 को 11 से मल्टीप्लाई कराया, 165 आ गया। दीज आर दी एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द एंगल्स। अब देखो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n होता है, n इज द नंबर ऑफ साइड। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय n हो गया यहां पर। सो गोइंग टू हैव द वैल्यू ऑफ n, n is 24 here, so number of sides over here is going to be 24।
Now in question number 13, it says the diagram shows the speed time graph for the part of the journey. Calculate the total distance during the 10 seconds. तो speed time graph में area under this graph, this whole area represent the distance. So how are you going to find out the area over here? The area is going to be the area of the trapezium. Half sum of L side. 8 plus 10 into height is 10 over here. So 8 plus is 2 ones are 2 5 are 10. 8 plus 10 is 18. 18 into 5 is 90. So 90 meter is going to be your distance over here. Now in question number 14, the diagram shows the sector of the circle with center O and radius 9. The length of the chord PQ is 6 centimeter. Calculate the length of the arc PQ. They are asking for the length of the arc PQ. देखो बेटा, arc length मालूम करने के लिए ना, we have this formula theta upon 360 multiplied by 2 pi r. But what about the theta? Theta तो हमें पता ही नहीं है. तो देखो ये भी रेडियस है, बिकॉज ये सेक्टर है ना, और ये भी रेडियस है, O इज द सेंटर, ये दोनों रेडियस है. तो बेटा what I'm going to do, I'm going to find out this angle with the help of this triangle. ये 6 है हमारे पास. This length is 6. Oh, this length is 9 over here, 9 centimeter. So when we got all three lengths, I need to find out the angle. You can use the cosine rule. Cos theta is equals to 9 square plus 9 square minus 6 square upon 2 into 9 into 9. Cos inverse 7 by 9, I'm going to take the value. I got 38.94. Now I'm going to use this formula to find out the arc length. .94 divided by 360 multiplied by 2 pi r. The radius is 9. So I can use divided by 360 multiplied by 2 into pi into 9. 8.117. Sorry, 6.117. And up to 3 signifier, it is going to be 6.12 centimeter, the arc length of this question. In question number 15, it says simplified. देखो यहाँ पर 3125 W power 3125 की whole bracket power 1 by 5 है. This power 1 by 5 is on both of these numbers. 3125 पर भी power 1/5 है और W की power 3125 पर भी power 1/5 है. अब देखो मुझे यहां से पता चल रहा है कि 3125 is divided by 5. तो मैंने यहाँ पर 5 को अगर आप देखो ना, तो ये 5 की पावर 5 होता है 3125. This whole bracket power 1 by 5 remains same. अब देखो मैं 5 की पावर 5 पर भी होल ब्रैकेट पावर 1/5, W की पावर 3125 पर भी होल ब्रैकेट पावर 1/5 कर दूंगा.
तो देखो ये हो जाएगा 5 की पावर 1 और ये हो जाएगा w की पावर 625। This is going to be my final answer here because 3125 is divided by 5 here. Now, in question number 16, it says y is inversely proportional to x square. This is the variation question. So y is inversely proportional to x square. 1 upon x square हो जाएगा ये. Equals to constant रख दिया. प्रोपोर्शनल का स्टैंडर्ड देगा तो बेटा नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के. तो के की वैल्यू मालूम करने के लिए इसने ये डेटा दिया हुआ आपको. x वैल्यू 3, y is 2 है. ठीक है, स्क्वायर 9 हो गया. ये 9 2 18 हो गया. के की वैल्यू 18 आ गई. I'm going to update my equation. I'm going to update my this equation k equal to 18. Okay, find y when x is equals to 2. So it is going to be 18 divided by 4. You can just simplify it. 2 9s are 2 2s are 4. Y value is 9 by 2 here. Y की क्या आ रही है? 9 by 2 आ रही है यहाँ. Which is you can also write it 4.5 भी लिख सकते हैं. मेरे पास कोई हर्ज वाली बात नहीं है. 9 question number 17 there are. This is the circle properties question. ABC is a cyclic quadrilateral. खुद बताया हुआ है कि ये A B C D ये पूरा cyclic quadrilateral है. ABX is a straight line. This one is a whole straight line here. PQ is tangent. All angles are given 85, 55 and 42 already written in the question as well, diagram as well. Angle CBD मालूम करना है. Which one is CBD angle? So this one is a CBD angle. तो देखो बेटा यहां पर I'm going to use the property. देखो ये chord है. We need to find out this. देखो सेम chord से यहां पर भी एंगल बन रहा है. Angle in the same segments. Angle in the same segment property. So this is going to be 42. ये 42 आ गया. Angle ACB. So we need to find out this ACB angle. ठीक है. And we are going to use the property here. अच्छा. So this one is 0580, 0.50580 में we have this one more property that is called alternate angle theorem. तो 0580 की प्रॉपर्टी है alternate angle theorem. उसमें क्या होता है बेटा कि this tangent over here is making an angle of this with this chord that is 55. ठीक है ना. अब इस chord ने यहां पर एंगल ट्राइंगल बनाया, दिस ट्राइंगल ओवर हियर. तो यहां पर एंगल 55 है. आप इस ट्राइंगल के अंदर गए, इधर दो एंगल बन रहे हैं. एक यहां पर बनेगा और एक यहां पर एंगल बनेगा. दो वर्टेक्स पे एंगल बन रहा है. तो देखो बेटा आपके पास क्योंकि राइट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पे जो एंगल बन रहा होगा ना यहां पर, दीज आर गोइंग टू बी सेम. ये दोनों सेम होंगे. 55 ये भी है तो ये भी 55 होगा. एंड दिस वन इज द ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही कहा आपने. दिस वन इज द ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट सेगमेंट प्रॉपर्टी. दिस वन इज 55 हियर.
Then we have ADC angle. We need to find this whole angle over here. हमें ये पूरा एंगल मालूम करना है ADC. अब देखो ये पूरी एक लाइन है. दिस इज द होल लाइन ओवर हियर. अब मैं यहां से यह कनेक्शन कर रहा हूं. देखो लाइन यहां पर है पूरी. व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस एंगल? तो 180 में से 85 और 42 माइनस कर दें. So you'll get 53 है. अब देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेटिल है. This whole angle is 42 plus 53. This whole angle is 95. तो साइक्लिक क्वाड्रेटिल में बेटा अपोजिट वर्टेक्स के एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. इफ दिस इज 95, this is going to be 180 minus 95, and 180 minus 95 is 85. So this angle is going to be 85 here. Okay, so we have this BCD angle. They're asking about this whole angle over here, BCD. BCD. I'm mentioning it over here. ये देखो ये पूरा एंगल मालूम. They're asking about this whole angle. तो इसका आधा एंगल तो मुझे पता है, that is 55. इतना पोर्शन तो मुझे पता है, that is 55. ये वाला एंगल क्या होगा? हमने बोला एक काम करते हैं. Let's just first find out this angle. मैं ये वाला एंगल मालूम करता हूं. देखो ये वाला. तो देखो ये पूरा ट्राइंगल है. 180 में से ये 55 और ये पूरा 95 था. I'll get 180 minus 55 minus 95. I'll get this 30 degree over here. सही ना? ये कैसे आया? 180 minus 55 minus 42 minus 53. ये हो गया 30 degree. Now this is a cyclic quadrilateral. ये 42 plus 30 है, 72 है. ये पूरा एंगल आ जाएगा बेटा 180 minus 72, that is 108. This whole angle over here is 108. तो ये हो गया बेटा, this angle is 108 over here. Now they are asking for angle PAD. बेटा they are asking for this angle PAD. अब ये स्ट्रेट लाइन है ना, टेंजेंट एक लाइन ही तो है हमारे पास. तो इस पूरे 180 डिग्री में से 55, 30 और 42 माइनस कर दो. ये हो गया बेटा 53. ठीक है. सो दिस एंगल इज 53 हियर. Now in question number 18 it says two solids are mathematically similar and have volumes 81 centimeter cube and 24 centimeter cube. The surface area of the smaller solid is 44 centimeter square. Calculate the surface area of the larger solid. देखो देखो अगर ट्राइंगल, अगर कोई शेप आपस में सिमिलर हो तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया के दरमियान कोई रिलेशनशिप डायरेक्टली नहीं है. हाँ, इनकी लेंथ के दरमियान रेशो होगा. अब दो सॉलिड्स हैं, उनके वॉल्यूम का रेशो उनकी लेंथ के रेशो के क्यूब के बराबर हो जाएगा. तो वॉल्यूम, बड़े वाला का वॉल्यूम 81 कह दिया, छोटे वाले सॉलिड का शेप वॉल्यूम 24 कह दिया. L1 अपॉन L2 का होल क्यूब हो गया बेटा ये. आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट फर्दर. देखो ये 327s are 3/8s are. I'm going to take the cube root on both side. तो 27 और 8 का क्यूब रूट. तो 27 का क्यूब रूट हो गया 3, 8 का क्यूब रूट हो गया 2. L1 ओवर L2 बच गया.
आप देखो एरिया का रेशो किसके बराबर होता है, हमें एरिया का रेशो बराबर होता है L1/L2 का स्क्वायर। अब देखो हमने स्मॉलर सॉलिड को ना हम V2 कह रहे थे यहां पर, दिस वन वाज अ स्मॉलर वन, क्योंकि इसका वॉल्यूम स्मॉल था, इसका वॉल्यूम लार्ज था, बड़ा था। तो इसलिए एरिया में भी A2 को स्मॉलर का वॉल्यूम कह रहा हूं बेटा मैं, स्मॉलर का एरिया कह रहा हूं। तो A1 हमें नहीं पता, स्मॉलर सॉलिड इज 44 ओवर हेयर, L1/L2 3/2 का स्क्वायर कर दिया हमने। लेंथ का रेशो कितना है, 3/2 है। तो A1 बराबर हो गया, A1/44 बराबर हो गया 9/4 के, 4 1 जा 4 11 जा A1 बेटा, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड, एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 99, this is 99 centimeter square is the area of the largest solid here. So just remember one thing कि बेटा हमने V2 V1 लार्जर का वॉल्यूम, V2 स्मॉलर का वॉल्यूम, A1 लार्जर का एरिया, A2 स्मॉलर का एरिया। Now find the value of x when 6x plus y equals to 10 and y equal to x square minus 3x plus 10 है यहां पर। तो बेटा अगर यहां पर x की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहा है, so I'm going to make y the subject from here, which is y is equal to 10 minus 6x. I'm going to put this y value over here in the second equation, जो कि कर्व की इक्वेशन है। तो 10 minus 6x is equal to x square minus 3x plus 10। बेसिकली इसने डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए बोला फॉर x वैल्यू। तो यहां पर जो x वैल्यू निकालनी है, अब इसमें तो दो इक्वेशन है, दोनों में x और y दोनों है, मुझे सिर्फ x निकालना है। तो मैंने यहां से y को सब्जेक्ट बनाया, दूसरी इक्वेशन में पुट करा एक्स स्क्वायर, अच्छा ये प्लस टेन कैंसिल हो गया, -3x + 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो गया, आई गॉट x कॉमन, x + 3 यहां पर हो गया। So whenever you have two brackets equal to 0, you can take, like you can write x equal to 0, x + 3 equal to 0, x की वैल्यू -3 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। 0 and -3 is going to be your answer. Now in question number 20, it says find the nth term of each sequence. So we have in part 1 we have the sequence. So first term is -1, second term is 0, 7, 26 and 63 and so on. तो देखो जब भी कोई सीक्वेंस दिखे तो उनके इस सीक्वेंस का रूल देखना है आपने सबसे पहले। तो मैं तो हमेशा डिफरेंस पहले चेक करता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर 0 माइनस -1, तो इट बिकम 0 + 1, डिफरेंस यहाँ पर 1 का है। 7 - 0, यहाँ पर डिफरेंस 7 का है। 26 - 7 इट इज 19। 63 - 26, तो 63 - 26 करते हैं, यू गेट 37। तो इनका तो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये लीनियर सीक्वेंस नहीं है। तो हम Tn इज इक्वल टू, लीनियर सीक्वेंस में हम Tn इक्वल टू a + n - 1t फॉर्मुला अप्लाई करते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मुला हियर, हम ये फॉर्मुला यहां पर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ये लीनियर सीक्वेंस हमारे पास नहीं है। सही है ना। अब यहां पर बेटा आपके पास, आप डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालो। लेट्स से यहां पर मैंने निकाला 7 - 1 6, 19 - 7 इज 12 एंड 37 - 19, मैंने इनका डिफरेंस निकाला 37 - 19, ये हो रहा है बेटा 18। इनका भी डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, सेकंड डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा। अब मैंने बोला भाई ये तो अब बात बन जाती है, एक और डिफरेंस देखना, क्यूबिक सीक्वेंस में हम लोग ऐसा करते हैं कि
आपके पास क्यूबिक सीक्वेंस में वापस से डिफरेंस दिया तो 12 माइनस 6, देखो हमारे पास कितना हो गया, दिस वैल्यू ओवर हियर इज 6, 18 माइनस 12 इज 6। अब देखो डिफरेंस सेम आ रहा है। तो बेटा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द क्यूबिक सीक्वेंस की एन टर्म मालूम करनी है। क्यूबिक सीक्वेंस की एन टर्म का फॉर्मूला होता है, इसको मैं मिटा ही देता हूं, इसका यूज नहीं है वैसे, ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी। तो देखो ये जो थर्ड डिफरेंस सेम आ रहा है आपके पास, तो बेटा आप याद रखिएगा क्यूबिक सीक्वेंस है। क्यूबिक सीक्वेंस का nth टर्म का फॉर्मूला ये लिखा आपके सामने, इसमें आपको ए बी सी डी की वैल्यू चाहिए, वो आप कैसे निकालेंगे। देखो थर्ड डिफरेंस को जो कि बराबर आ रहा था उसको हम 6a के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे, 6a के। विल गेट द वैल्यू ऑफ a विच इज 1। जो सेकंड डिफरेंस जो कि बराबर नहीं आ रहा, इसको हम रखेंगे बराबर 12a प्लस 2b के बराबर रखेंगे, और इसको बराबर रखेंगे 6 के। देखो यहां पर सेकंड डिफरेंस जो है ना वो 6 भी है, 12 भी है, 18 भी है। तो मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट डिफरेंस की बात कर रहा हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं 12a प्लस 2b बराबर देगा 6 के। सो यू हैव 12a प्लस 2b इज इक्वल टू 6। यहां पर आप a की वैल्यू 1 पुट कर दें, विच यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट। तो 6 2b इक्वल टू 6 माइनस 12 इज -6, b की वैल्यू -3 आ जाएगी। नाउ यू आर गोइंग टू पुट दिस difference 1, the first difference 1, you're going to equate it 7a plus 3b plus c. You're going to equate it with 7a plus 3b plus c, which is equals to 1. तो देखो यहां पर 7a which is equals to 1, you're going to put a value is 1, b value is -3, you have already found out this value. So 7 minus 9 plus c is equals to 1. 7 minus 9 is -2, -2 on the right hand side become +2, 1 plus 2 is 3 here, got the c value is 3 here. And you're going to put the very first term equals to a plus b plus c plus d. Like you're going to put a plus b plus c plus d is equals to -1. I'm just going to make some space here. बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्रेशन करी है मैंने यहाँ पर. So it is going to be a plus b plus c plus d is equal to -1. You know the value of a is 1, the value of b is -3. The value of c is 3, the value of d I don't know, which I obviously need to find out. So -3 plus 3 plus d is equal to -1. So you can see -c plus c cancel, d value is -2 here. 1 is going to be shift on the right hand side, become -2 here. ठीक है ना. तो देखो बेटा आपके पास यहां पर we got the value of a, we got the value of b, we're going to put it in the term formula. So nth term over here is going to be a value is 1 n cube, b value is -3 n square, c value is 3n, and d value is -2. So we got this cubic equation as n cube -3 n square plus 3n -2. This is the nth term of the sequence. ठीक है ना. This is the cubic sequence, जो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा. अच्छा, now this one is obviously one of the solution of this cubic sequence, लेकिन ये 2 मार्क का सवाल है. ऑब्वियसली 2 मार्क का सवाल इतना बड़ा हमने कर दिया है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यू कैन यूज दिस मेथड, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है. बट अगेन दिस वन इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन. अगर आप मार्क्स लिहाज से देखें तो बहुत लेंथी वर्किंग है इसकी.
इसलिए जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को विदाउट फॉर्मूला भी इसकी सॉल्विंग जरूर आए। अब वो कैसा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक आपको डेमो दे देता हूँ। अगर आपका एनालिटिकल दिमाग यहाँ पर पहुंचता है तो दैट्स वेरी गुड। लेट मी जस्ट गिव यू अ डेमो फॉर दिस। इसी क्वेश्चन को आई एम डूइंग इट अगेन, द सेम क्वेश्चन आई एम डूइंग इट अगेन बट डिफरेंट वे में। देखो यहाँ पर आई एम गोइंग टू फाइंड आउट कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म है तो -1, सेकेंड टर्म 0, थर्ड टर्म 7 है, फोर्थ टर्म 26 है, फिफ्थ टर्म 63 है। तो मैंने यहां पर जो टर्म की पोजीशन है ना, उसके साथ टर्म की वैल्यू का रिलेशनशिप क्रिएट करूंगा मैं। मैंने ये देखा कि ये जो 63 है ना, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक रिलेशनशिप बना रहा हूं यहां से, ताकि यहां से समझना थोड़ा आसान हो जाएगा, -1 से मुश्किल हो जाएगा। यहां पर अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो 63 के करीब करीब आ रहा है। 4 का क्यूब मतलब 5 -1 का क्यूब करता हूं, फिफ्थ टर्म है ना ये, तो 5 -1 का क्यूब करता हूं, 4 का क्यूब दैट इज 64। 64 में -1 करूंगा, आई गेट 63। तो मतलब फिफ्थ टर्म तो आ गई 5 -1, फिफ्थ टर्म क्या आ रही है 5 -1 का होल क्यूब देन -1। और यहां पर भी मैं चेक कराता हूं 20, या फोर्थ टर्म है ना, 4 -1 3 का होल क्यूब 27, 27 -1 26 हो गया। थर्ड टर्म है ना 3 -1 2 होल क्यूब 8 हो गया, -1 7 हो गया। आप देख रहे हो कि जो टर्म नंबर है मैं उसमें -1 कर रहा हूं, फिर जो आंसर आ रहा है क्यूब कर रहा हूं, फिर उसमें -1 कर रहा हूं, आई एम गेटिंग द टर्म वैल्यू। तो ये थोड़ा सा सोचना है, ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस से ही आएगा। सो यू कैन आल्सो राइट 2 -1 होल क्यूब -1, 2 -1 होल क्यूब इज 1 का क्यूब 1, 1 -1 इज 0, 1 -1 होल क्यूब 0 क्यूब 0 हो गया, -1 इज -1। तो बेटा आपने ये देखा कि अगर यहां पर n टर्म हो तो इट इज गोइंग टू बी n -1 होल क्यूब -1। तो देखो इसकी ये भी टर्म फॉर्मूला बन सकता है n -1 होल क्यूब -1। दिस टर्म फॉर्मूला एंड द अबव टर्म फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया दोनों सेम ही है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। वह उसमें वर्किंग ज्यादा है और इसमें एनालिटिकल थिंकिंग थोड़ी ज्यादा है। उसमें वर्किंग ज्यादा है, इसमें एनालिटिकल थिंकिंग ज्यादा है, थोड़ी नहीं थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है जी। ना इन द नेक्स्ट सीक्वेंस पार्ट बी सीक्वेंस, उसकी भी एन टर्म मालूम करने कह रहा है। मैंने देखा भाई यहां पर खास तौर पर बेटा मैंने देखा 24 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा 12 आएगा, 12 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा 6 आएगा, 6 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा आई गेट 3, 3 को मल्टीप्लाई बाय 1/2 करूंगा आई गेट 1.5। तो बेटा ऐसी सीक्वेंस जिसमें पिछली टर्म में कोई खास नंबर मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आए, ऐसी सीक्वेंस इसमें पिछली टर्म में कोई खास नंबर मल्टीप्लाई करें तो अगली टर्म आए, दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म फॉर्मूला क्या है? मैंने पीछे भी पेपर सॉल्व कराया, उसमें बताया था ए एन इक्वल्स टू ए आर की पावर n-1। a means the first term which is 24 here, r means this number 1/2। अच्छा ये नंबर आता कैसे 1/2? r आता है नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है 12 डिवाइड बाय 24, 6 डिवाइड बाय 12, सो यू आर गेटिंग 1/2 ना। तो यहां पर देखो मैंने r की जगह 1/2 लिखा, होल ब्रैकेट पावर n-1 हो गया। तो इस सीक्वेंस की nth टर्म 24 इंटू 1/2 की पावर n-1। इसमें a इज द वेरी फर्स्ट टर्म, r इज द रेशो, और वो किस तरह निकलता है नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म, और n रिमेन सेम, n तो n टर्म निकाल लो इसलिए n रिमेन सेम।
A car travels 14 kilometer correct to the nearest kilometer. This takes 12 minutes correct to the nearest minute. Calculate the lower bound of the speed of the car. Give you answer in kilometers per minute. देखो स्पीड निकलता है डिस्टेंस ओवर टाइम के. मुझे स्पीड का लोअर बाउंड चाहिए. आई थिंक ये बात क्वेश्चन हम पहले भी इस तरह कर चुके हैं, लेकिन उसमें अपर बाउंड चाहिए था. ओवर हियर वी नीड द लोअर बाउंड हियर. लोअर बाउंड, द वैल्यू इज लोअर बाउंड हियर स्पीड की. तो डिस्टेंस जितना कम होगा, टाइम जितना ज्यादा होगा. डिस्टेंस मींस न्यूमरेटर जितना कम होगा, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा, उतना फाइनल आंसर यानी स्पीड की वैल्यू कम आएगी. न्यूमरेटर जितना कम, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा, उतना ही फाइनल आंसर की वैल्यू कम आएगी. दिस इज गोइंग टू बी लोअर देन. तो इसका मुझे लोअर बाउंड चाहिए, इसका मुझे अपर बाउंड चाहिए. अगर न्यूमरेटर की आई नीड द लोएस्ट वैल्यू, इट मींस आई नीड द लोअर बाउंड. डिनोमिनेटर की आई नीड द हाईएस्ट वैल्यू, इट मीन आई नीड द अपर बाउंड है. अब ये 14 किलोमीटर करेक्ट टू द नियरेस्ट किलोमीटर है. नियरेस्ट किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर. So I'm going to divide this 1 by 2, it becomes 0.5. अब 40 में बेटा 0.5 ऐड करवाते ना, तो इट इज गोइंग टू गिव यू द अपर बाउंड. सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो लोअर बाउंड. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लोअर बाउंड. हमें ये अपर बाउंड नहीं चाहिए अभी यहां पर. तो वी नीड द लोअर बाउंड 13.5. टाइम 12 मिनट से करेक्ट टू द नियरेस्ट मिनट. नियरेस्ट मिनट का मतलब है 1 मिनट. 1 को डिवाइड बाय 2 करा, इट बिकम 0.5. 12 में 0.5 ऐड करेंगे, यू विल गेट 12.5 अपर बाउंड. 12 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट द लोअर बाउंड 11.5. हमें तो अपर बाउंड चाहिए, वी डोंट नीड द लोअर बाउंड. तो बेटा यहां पर मैंने 12.5 लिखा. हाँ, वी नीड द अपर बाउंड है. तो 13.5 डिवाइड बाय 12.5, 13.5 divided by 12.5, it is 1.08. स्पीड का बेटा ये लोअर बाउंड आ गया. एंड इट इज ऑब्वियसली डिस्टेंस का यूनिट था किलोमीटर और टाइम का यूनिट था मिनट. तो इट इज गोइंग टू बी किलोमीटर पर मिनट. उनको भी किलोमीटर पर मिनट में फॉर्म में आंसर चाहिए था. सो इट इज 1.08 किलोमीटर पर मिनट. ठीक है जी. Okay, in question number 2022, it says the diagram shows the triangular prism ABCDQP of length 7 centimeter. Length 7 centimeter. The cross section of the triangle PAB is PA is 4, AB is 5, angle PAB is 90 degree. This one is a right angle triangle. The angle between the calculate the angle between the line PC and the base ABCD. देखो जब भी बेस के साथ एंगल निकालने के लिए कहे ना आपसे, तो ये पूरी बेस को कंसीडर करने का मतलब ये नहीं होता कि आप पूरी बेस को फोकस कर लें. बेसिकली बेस में एक लाइन बनानी है जिसके साथ इस पीसी लाइन का एंगल बने. देखो ना ये पीसी लाइन, ये डायगोनल में लाइन जा रही है, इसको ये बना ले. अब हमने करा क्या बेटा, यहां पर ये लाइन ड्रॉ करी, दिस लाइन ओवर हियर. अब देखो ये पीसी का बेस लाइन के साथ, बेस में एक लाइन ड्रॉ करी ना, इसके साथ बेटा ये एंगल बन रहा है, हमें ये मालूम करना है. अब बेटा ये जो लाइन होगी ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा. यहां पर ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्योंकि ये बेस में लाइन बनाई है मैंने. बेस का इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल 90 डिग्री बनेगा. भाई ये लाइन वर्टिकल है. कैसे वर्टिकल है? ए बी के साथ 90 डिग्री बना रही है. ए बी तो बेस लाइन है, ए बी भी तो बेस में है हमारे पास. तो बेटा हमने ए सी को बेस में लाइन बना दिया. नाउ वी नीड दिस एंगल ओवर हियर. हमें ये एंगल मालूम करना है. एंड टू फाइंड आउट दिस एंगल, दिस वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. एक हमने ये देख ली बात. सेकेंडली अगर आपको ये एंगल मालूम करना है, सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस लेंथ. सर ये देखें ऑलरेडी पता है 4 सेंटीमीटर है. राइट एंगल ट्राइंगल की एक लेंथ मुझे पता है 4 है. सर आइदर पीसी पता चल रहा है, आइदर एसी पता चल रहा है, तो सर ये एंगल पता चल जाएगा.
AC we can easily find out because it is a, this one is a square base. देखो ये स्क्वायर बना हुआ है हमारे पास डिनोमिनेटर में, प्रिज्म है ना ये, तो जो लेंथ इसकी है 5, ये पीछे डीसी की लेंथ भी 5 है, जो लेंथ इसकी है एडी की, ये भी बेटा हमारे पास 7 है, दोनों 7 लेंथ है। तो मैंने बोला यार यहां पर एंगल जो बनेगा ना, यहां पर ये एंगल, ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना? तो विद दिस हेल्प आई एम गोइंग टू फाइंड आउट दिस AC length. AC length is using Pythagoras theorem. AC square is a hypotenuse. 5 square plus 7 square. It is 74. So AC का square root is root 74. तो बेटा ये आपके पास root 74 is the value over here. And now you need to find out this angle. तो देखो you have this adjacent over here जहां पर angle और 90 डिग्री दोनों बन रहे हैं. You have this opposite sign over here. So opposite over adjacent is tan theta. I'm going to take the tan inverse. Is 24.93. आपके एंगल जो है ना बेटा वो 1 डेसिमल प्लेस पर हो, ये याद रखिएगा। 24.9 डिग्री, डिग्री का साइन डाला है, डेसिमल प्रॉपर डाला है, और 1 डेसिमल प्लेस पे बेटा मैंने आंसर दिया है। मेक श्योर कि आप भी ऐसे ही आंसर देंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 23 दे आर सेइंग सिंपलीफाई दिस। देखो कभी भी इस तरह कोई फ्रैक्शन, अलजेब्रिक फ्रैक्शन आए और आपको सिंपलीफाई करना हो तो बेटा याद रखिए ऊपर भी फैक्टराइजेशन हो रही होगी, नीचे भी फैक्टराइजेशन हो रही होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम यही हो रहा हो। तो ऊपर 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स की फैक्टराइजेशन कैसे होगी बेटा? या तो कंप्यूटिंग, या तो ये होल ब्रैकेट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहा होगा, कोई आइडेंटिटी लग रही होगी, या फिर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही होगी। सो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और मैं यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग सबको फिर से समझा देता हूँ। ये देखो बेटा 5x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 12। अक्सर बच्चे पूछते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे होती है, तो मैं न्यूमरेटर को मैंने कॉपी करा हुआ है यहाँ पर। आप 5 को मिडल बाय प्लस 12 करें, प्लस 5 को मिडल बाय प्लस 12 साइन के साथ, एकदम 60। नाउ आस्क योरसेल्फ टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 60 हो, जिनको ऐड करें तो माइनस 19 मिडिल टर्म आए। ऐसे 2 नंबर्स बताओ। ठीक है ना? तो मुझे दिमाग में बेटा 2 नंबर्स आ रहे हैं, 15 इंटू 4 और 15 प्लस 4 तो प्लस 19 होता है, हमें तो माइनस 19 चाहिए। 15 इंटू 4 तो 60 होता है, लेकिन 15 प्लस 4 प्लस 19 होता है, हमें माइनस 19 चाहिए। तो मैंने यहाँ पर माइनस 15 माइनस 4 कर लिया और माइनस 15 माइनस 4 कर लिया। अब माइनस 15 इंटू माइनस 4 प्लस 60 होता है, माइनस 15 प्लस माइनस 4 माइनस 19 होता है। तो इसका मतलब हमारे पास इसकी मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगी 5x स्क्वायर माइनस 19 जो है ना, माइनस 19 यहाँ पर ये पूरा माइनस 19, ये ब्रेक हो जाएगा माइनस 15x माइनस 4x प्लस 12। एलरेडी कॉपी हो गया। 5x कॉमन आया, ये x माइनस 3 हो गया, माइनस 4 कॉमन आया, ये x माइनस 3 हो गया। वी गॉट x माइनस 3, 5x माइनस 4, यहां पर हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। तो न्यूमरेटर में देखो मैंने लिखा x माइनस 3, 5x माइनस 4। डिनोमिनेटर में यू कैन सी के x स्क्वायर माइनस 9 को मैं लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में बेटा हमारे पास अगेन ये फॉर्मूले वाली फैक्टराइजेशन हो रही है। दिस इज द आइडेंटिटी ओवर हियर। तो x माइनस स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज x माइनस 3, x प्लस 3। नाउ यू कैन सी x माइनस 3 कैंसिल। अब जो भी लेफ्ट ओवर है बेटा दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर व्हिच इज 5x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? मैंने फैक्टराइजेशन करी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में फैक्टराइजेशन करी, एंड देन जो भी कैंसिलेशन हो रही थी हमने करके उसको आंसर दे दिया। अच्छा, ये इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। देखो सेइंग द प्रोबेबिलिटी of Jamie hitting a target is 1/3. The probability that he hits the target for the first time on his nth attempt is 64/2187.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब जरा सवाल को आपने समझना है। देखो जैमी जो है ना वो टारगेट को हिट कर रहा है, हम लोग डार्ट खेल रहे हैं और वो टारगेट को हिट कर रहा है। पहली दफा हिट करने की प्रोबेबिलिटी, आपने हिट कर दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। अगर आपने पहली दफा हिट नहीं करा तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, हिट की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। नॉट हिट की कितनी हो जाएगी? 1 - 1/3। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 - 1/3 इज 2/3। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी पहले मेरी, ठीक है ना? अब मैं आपको बताता हूं इस सवाल मुझे क्यों अच्छा लगा। अब उसने बोला है कि उसने ये नहीं बोला कि उसने पहली दफा थ्रो करी और उसका टारगेट हिट कर गया, उसने ये बात नहीं बोली। उसने बोला उसने nth अटेम्प्ट करी तो उसका टारगेट हिट कर गया फर्स्ट टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने बता दी 64/2187 है। चलो मैं और इजी करता हूं सवाल को। लेट से उसने हिट कर दिया टारगेट थर्ड अटेम्प्ट में, nth को छोड़ के मैं इधर लिख देता हूं थर्ड अटेम्प्ट में, और इस प्रोबेबिलिटी को भी हटा दो, जरा इसको हटा दो अभी थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूं उसने थर्ड अटेम्प्ट में टारगेट हिट करा, तो देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट हिट नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सेकंड में भी नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। थर्ड में कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। तो टोटल 3 अटेम्प्ट में उसने फर्स्ट टाइम टारगेट हिट करा, 3 अटेम्प्ट में। ठीक है, उसने फर्स्ट टाइम टारगेट हिट करा है। तो बेटा यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसने थर्ड अटेम्प्ट में टारगेट हिट करा है और ये फर्स्ट टाइम है जिस वक्त इसने टारगेट हिट करा है, ये फर्स्ट टाइम है, पहले 2 टारगेट मिस कर गए थे, तो प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। चलो फिर से खेलते हैं इस बात को, फिर से खेलते हैं। इसने ये फर्स्ट टाइम में करा, सेकंड टाइम में नहीं करा, थर्ड टाइम में कर लिया। अगेन क्या पता उसने फोर्थ टाइम अटेम्प्ट में टारगेट हिट करा हो। तो यहां पर देखो फर्स्ट टाइम में उसने टारगेट नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। सेकंड अटेम्प्ट में टारगेट नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। थर्ड टाइम में उसने टारगेट हिट नहीं करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। फोर्थ अटेम्प्ट में टारगेट हिट कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी किस चीज की आएगी कि उस बंदे ने, जैमी ने फोर्थ अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम टारगेट हिट करा है, उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैमी ने फोर्थ अटेम्प्ट में टारगेट हिट करा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। सर एक दफा फिर से करवा दें, चलो फिर से करवा दो, सवाल अच्छा है इसलिए फिर से करवा दो। उसने फिफ्थ अटेम्प्ट में पहली दफा टारगेट हिट करा हो, यानी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करा प्रोबेबिलिटी 2/3। सेकंड अटेम्प्ट में नहीं करा, प्रोबेबिलिटी 2/3। थर्ड अटेम्प्ट में नहीं करा, प्रोबेबिलिटी 2/3। फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं करा, प्रोबेबिलिटी 2/3। फिफ्थ अटेम्प्ट में कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 1/3 हो गया। तो फर्स्ट में नहीं करा, सेकंड में नहीं करा, थर्ड में नहीं करा, फोर्थ में नहीं करा, फिफ्थ में कर लिया। फिफ्थ में फर्स्ट टाइम टारगेट हिट करा, ये इन सबको मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। आप एक बात ये नोट डाउन कर रहे हो कि अगर फिफ्थ अटेम्प्ट में टारगेट हिट करा है तो टारगेट नहीं हिट करने की प्रोबेबिलिटी 4 दफा है, यानी इसको मैं लिखूंगा 2/3 की पावर 4 इंटू 1/3। इसको मैं लिखूंगा 2/3 की पावर 2 इंटू 1/3। इसको मैं लिखूंगा 2/3 की पावर 3 इंटू 1/3। क्या सबको ये बात क्लियर है? तो बेटा अगर मैं यहां पर nth अटेम्प्ट में टारगेट हिट करूंगा फर्स्ट टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी nth अटेम्प्ट में? अगर फोर्थ अटेम्प्ट में टारगेट हिट कर रहा हूं फर्स्ट टाइम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 की पावर 3 इंटू 1/3।
थर्ड अटेम्प्ट में फिट कर रहा हूं तो 2/3 इंटू 2 इंटू 1/3। फिफ्थ में कर रहा हूं तो 2/3 की पावर 4 इंटू 1/3। और बता nth अटेम्प्ट में कर रहा हूं तो 2/3 की पावर n-1 इंटू 1/3। ये फर्स्ट टाइम टारगेट हिट कर रहा हूं nth अटेम्प्ट में। वेरी गुड इमाज, फर्स्ट टाइम टारगेट हिट कर रहा हूं nth अटेम्प्ट में। उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे पास ये आ रही है। इन्होंने क्या दी है प्रोबेबिलिटी? इन्होंने दी है 64/2187। तो मैं इसको इक्वेट कर रहा हूं 64/2187। अब बस मुझे n की वैल्यू निकालनी है। मैं n की वैल्यू देखो कैसे निकालता हूं। इंडाइसिस हमारा पक्का होना चाहिए। 64 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 2187। अब देखो 2187, 3 1 जा 3 7 29 जा 64/729। और ये n-1 था, सॉरी मैं ये n-1 था। मैंने 64 को भी क्या लिखूंगा? 64 होता है 2 की पावर 6, 3 की पावर 6। देखो मैंने यहां पर 729 को लिखा, 3 की पावर 6 729 होता है। 64 को लिखा 2 की पावर 6। तो देखो अगर हम बेसिस कंपेयर करें, सो वी विल गेट द वैल्यू n-1 इक्वल टू 6। n की वैल्यू बेटा 7 आ जाएगी यहां पर। यानी 7th अटेम्प्ट में वो फर्स्ट टाइम टारगेट को हिट करेगा। उसकी वैल्यू 64/187 है। उसने n की वैल्यू मांगी हुई थी, n की वैल्यू देखो 7 निकल कर आ गई। द वैल्यू ऑफ n इज 7 ओवर हियर। Now moving on to the last question. It says find the inverse of this. देखो हम fx की जगह यहां पर y भी लिख सकते हैं। अब जो आपके पास ये इक्वेशन है ना y इक्वल टू x3+1, इसमें y को मिटा के x लिख दो और x को मिटा के y लिख दो। तो बन जाएगा x-1 इज इक्वल टू y क्यूब। अब y को सब्जेक्ट बनाना है। आई एम गोइंग टू टेक द क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट लिया बोथ साइड। I got the value of y. Now this y value जो कि स्वैपिंग करने के बाद आई है, x की जगह y की जगह x रखने के बाद, this y value is f inverse x cube root of x-1. This is going to be your final answer here. So this was the last question of this paper. Question है, you can just tell me. और कोई बात पूछनी, you can just tell me. मैं सॉल्व कर दूँ. Thank you so much.